Our next session deals with the significant subject of social entrepreneurship and its social, cultural, environmental and economic dynamics and implications. What is social entrepreneurship? Why is it the need of the hour? What qualifications do you need to be a social entrepreneur? All these questions and much more will be answered in our next session. We have Mr. Srijan Pal Singh with us in conversation with Mr. Jatin Kataria. Can we please have you up on stage, sir? A few words about these stalwarts of social entrepreneurship. Mr. Srijan Pal Singh, a name to reckon in the field of social entrepreneurship. Srijan Pal Singh is the co-founder and CEO of Dr. APJ Abdul Kalam Project. He is also an author, public speaker, activist and leader. Mr. Srijan Pal Singh has co-authored a bestseller book with none other than Dr. APJ Abdul Kalam titled Target 3 Billion, which recommends innovative solutions towards sustainable development of the rural areas of the world. The idea of Pura, P-U-R-A, evolved from the book. It's taken up as a major national program by Government of India in association with many Indian corporates in a private-public partnership model. He has also launched Reignited book, which he co-authored with Dr. APJ Abdul Kalam, which is a sequel to Ignited Minds and talks about scientific careers for the youth. Mr. Singh has also co-authored Advantage India, the last book by Dr. APJ Abdul Kalam. He has also co-authored Delhi Metro, Excellence in Management, published by UNDP, which is a study of best practices in management of leadership and development in Indian Institute of Management, Ahmedabad and Indian Institute of Management, Indore. He is a public speaker and has spoken at various events, including various TEDx events, Australia-India Youth Dialogue, and has contributed to leading national newspapers like Rajasthan Patrika, Hindustan Times, Times of India, and The Hindu. The inspirational super achiever, Srijan Pal Singh. Can we have a round of applause for him? Mr. Jatin Kataria, his excellence and brilliance shines bright. At a very young age, this serial and missionary entrepreneur received many awards in the United Nations Summit and represented India 11 times. He has directly worked with people from 33 countries and has a network of more than 100 countries. A mechanical engineer and MBA, Mr. Jatin was the Global Vice President of Strategy for Challenge Future Chapters Network. He is also an award-winning president of Challenge Future India Chapter. He is currently the advisor of the Youth Advisory Board, member of an international multi-award-winning Think Do Tank, Challenge Future, Google Business Group and Women on Web Rajkot chapters. He is the founder of WE Group, Glocal Solutions, Smart Failures, Quantity of Failure Matters, and Startup MOU. He is also the co-founder of Glocal Co-working Space, Parinde, India-Pakistan Friendship Project, and Alumni Achievers. He's also on the editorial board of Challenge Future, and 20 of his articles have been published globally. We have here the dynamic duo to take us through a stimulating session. Thank you. Thank you very much. Sir, welcome to your home, Ahmedabad. Very good morning to all of you. Good morning. Again, good morning. Good morning. That is better. Okay, simple question. Gujarati કેટલા ને ખબર છે? Okay, Gujarati કેટલા ને નથી સમજાતું? એવું ન પૂછાય નહીં. How many does not understand Gujarati? Okay. Okay. So we'll keep a mix of everything. Hindi. Okay. How many of you understand Hindi? Perfect. Perfect. Hindi wins. Done. Okay. I always admire an amazing person who is very close to his heart, and he was very close to his heart. वो बोलते हैं कि भाई I know Sachin Tendulkar, but problem is Sachin Tendulkar मुझे जानता है कि नहीं. So that is the difference when it comes to Sir and very respected Dr. APJ Abdul Kalam. It's always difficult to find a guru.
And when you find it, and you spend a lot of time with your guru, that takes your life in a different scale. And especially when the person who is righteousness in his heart, you always speak about it, integrity and ethics. And one thing about leadership that he said, and then we'll start a conversation with Sir, because he has tremendous amounts of experience with him, and he himself is doing some marvelous work. I was trying to understand his work, his profile since yesterday, and every moment, every sentence was giving me a lot of surprises. So, I'm a fan of yours now. Kalamji always said about leadership that when failure comes, leader takes a responsibility, and when success comes, leader gives to the team. When someone has this enormous amount of energy and this soulful thought, उसके साथ काम करके सर मैं आपके बाजू में बैठा हूँ तो I am feeling very proud. सर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर ब्लड में है, और हर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को सिंपल लैंग्वेज में बोले थोड़ा कनेक्ट कर सके ऐसे कि जिसको देश बदलने का कीड़ा होता है, बराबर? तो सर ये कीड़ा मुझे जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बचपन से आ जाता है. I mean in their past life. When I studied your profile, it always starts anybody's profile. It always starts from graduation यहाँ से हुआ, ये वहाँ से हुआ. But would love to know more about what build your character as a person, what build the integrity in yourself since your childhood. ऐसा क्या हुआ in your schooling life, in your family, in your hometown? What happened in your life that you became so amazing by heart? Yeah. So सबसे पहले तो हूँ तुम्हारा वधे साथे खूब खुश है. Oh sir. I hope आप लोग हमारी गुजराती को अप्रिशिएट करेंगे. मैं गुजरात अहमदाबाद खास तौर से एक घर है मेरे लिए. इनफैक्ट पिछले 7 IIM से ग्रेजुएट होने के बाद शायद सबसे ज़्यादा समय मैंने दिल्ली में बिताया, और उसके बाद सेकंड नंबर पे अहमदाबाद में बिताया. अहमदाबाद और यहाँ तो इस बिल्डिंग के सामने IIM अहमदाबाद मेरा कैंपस है, और IIM अहमदाबाद वाज द प्लेस जहाँ पहली बार मैं डॉक्टर कलाम को प्रत्यक्ष रूप से मिला आपके सामने, और वो एक शिक्षक के रूप में थे और मैं एक छात्र था, और आज भी उनके जाने के बाद भी वो एक शिक्षक हैं और मैं एक छात्र. अब मैं अकेला छात्र नहीं हूँ, अब आप सब छात्र हैं. सही बात? पक्का? अब आपके सवाल पे आते हैं. ठीक है. तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे आप हो मैं या यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति, हमने ज़्यादातर हम लोग ऐसी एक फैमिली 1990s की फैमिली, 1980s की फैमिली, 70s की फैमिली से, उन सब फैमिलीज में हम लोग कहीं ना कहीं एक ऐसे देश को देख करके ही बड़े हुए हैं जिसमें समस्याएं थी. एक ऐसे समाज को देख के पैदा हुए हैं. ये तो बहुत समस्याएं हैं. अच्छी बातें भी थी, ग्रोथ भी थी, प्रोग्रेस भी थी, डिप्राइविटी भी थी, हंगर भी थी, इनक्लूसिव भी थी. और भारत का कल्चर ऐसा है, भारत की एजुकेशन, शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक जो एक होता है परिवार, हमारे त्यौहार, हमारे धर्म, चाहे जिस भी धर्म से हो, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम कंपैशन को बिलीव करते हैं. संवेदना हमारे परिवार में. और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मैं, हम सब लोगों ने उस संवेदना का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी संस्कृति में है, हमने वो समस्याएं देखी, और उन समस्याओं को कहीं ना कहीं हल करने की हमारे अंदर एक जद्दोजहद की, एक इच्छा थी, एक विचार. ये सच है कि कुछ लोग उस विचार को आगे तक ले जाते हैं, कुछ लोग कुछ आगे तक ले जाते हैं, कुछ लोग काफी आगे तक ले जाते हैं, कुछ लोग उसको अंजाम तक ले जाते हैं, और कुछ लोग एक मुकाम तक ले जाते हैं जिसके आगे बाकी लोग ले जाते हैं. लेकिन ये गाड़ी घूमती रहती है ना? सही बात है. तो मेरे ख्याल में यहीं से, शायद उसी परिवार से और उसी शिक्षा और उसी संस्कृति से, बचपन से ही कुछ ना कुछ लोगों की समस्या हल करते रहो. ये हमें सिखाया गया. आपको सिखाया गया? ये एलिमेंट हर सोशल एंटरप्रेन्योर्स के जद्दोजहद में एक कॉमन चीज दिखती है.
कि उन लोगों का जो बचपन गुजरा होता है, उन लोगों का जो ग्रूमिंग होता है, पर्टिकुलरली फैमिली एंड आजू-बाजू के माहौल में, ये सिमिलर चीज़ें हैं, इसीलिए वो कीड़ा रहता है इसको करने का, वरना तो बहुत लोग इसको करते हैं। बट ये जो लाइन है, that is differentiating from, there is a slight differentiation from jumping from entrepreneur to social entrepreneur. That is in fact, अब अफ्रीका से हम लोगों की शुरुआत हुई, ठीक है, इंसानियत की, और अफ्रीकी की जो भाषा है सबीली, राइट, सबीली भाषा में जब किसी को आप बोलते हैं जैसे आपको मैं मिलूंगा और इनसे मैं बोलूंगा हेलो, है ना, हिंदी में बोलेंगे नमस्ते। सबीली भाषा में जो शब्द बोलते हैं उसका अर्थ होता है मैं आपको देख रहा हूँ, आई ऑब्जर्व। जब हम बोलते हैं बाय, सबीली भाषा में जो बाय का शब्द होता है इज आई बिकम यू। So how many conversations, how many meetings you just need to do this? आप किसी को देखते हैं कि कुर्सियां देखिए किसी ने एकदम सलीके से लगा रखी है, किसी ने इसको साफ किया होगा, किसी ने सारा सिस्टम लगाया होगा, क्या हम उसको ऑब्जर्व करते हैं? और क्या जब ये सब हम यहाँ से चले जाएंगे, क्या हम एक दूसरे से कुछ सीख के जाएंगे? और क्या हम एक दूसरे के से वो अच्छी चीज सीख करके उसके वो अच्छे आयाम को अपने अंदर ला पाएंगे? डॉक्टर कलाम यही बोलते थे, एक सुबह से शाम तक आप कुछ कई लोगों से कई चीजों को देखते हो, टीवी देखोगे, इंटरनेट देखोगे, लोग मिलेंगे, आप लोगों के बारे में सुनो, आपने क्या उनसे अच्छी चीजें निकाली? You don't need a positive newspaper to be positive. You need to find positivity in the newspaper. वो कहते थे एक डायरी लीजिए और लिखिए कि आपने क्या क्या सीखा, अच्छी बात। अगर आप इतना कर रहे हैं तो I think that's the start to be a social media. सर एक और चीज़, आपके जब आप क्लासरूम में कलाम सर से पहली बार मिले, 80 लोग थे आपकी बैच में, गूगल ऐसा होता है। अच्छा, बाकी 20 लोग बिना सब्सक्रिप्शन क्या है, WD without ticket. So those 100 were badly in love with Kalam sir, but you become part of his life. Why he fell in love with you? Good questions with difficult words. So you see, ऐसा है कि एक फ्रेज, ठीक है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, you know कि अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो नॉक भी करेगी आपके डोर पे शायद, लेकिन अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं IIM गया, किस्मत थी, बबल तो कलर करने होते हैं, और कैट का एग्जाम, सॉरी अगर कोई IIM से बैठा है यहाँ पे, जूनियर हो सकते हैं यहाँ पे, या प्रोफेसर होंगे तो बिल्कुल भी ना सुने इस बात, ठीक है, कल 2-3 प्रोफेसर आए थे IIM से, ठीक है। सो कोई एक कैट का एग्जाम किस्मत से निकल गया, और उसके बाद किस्मत ही थी कि वहाँ पे स्टूडेंट प्रेसिडेंट बन गया, वोट ही तो किया था किसी ने, ठीक है, और उसके बाद फिर डॉक्टर कलाम आए, ये तो बहुत ही बड़ी किस्मत थी। लेकिन जब आपको मौके इतने मिले तो आपने उसका क्या किया? यही आपका टेस्ट यही है, दिस इज गॉड्स टेस्ट। सो डॉक्टर कलाम जब हम लोगों को पढ़ा के गए, उन्होंने एक वादा किया, कोई भी अच्छा आइडिया अगर आप लोग देंगे, मैं वादा करता हूँ, डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैं इसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिस तक ही पहुँचाना है मैं पहुँचाऊँगा। अब ये एक मौका है, तो फिर हम लोगों ने दूसरे बोल रही थी पूरा के ऊपर काम किया, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एंड रूरल एरियाज। बट लोग बातें तो बहुत करते हैं, बट ये एक ऐसे शिक्षक थे जो शिक्षक के रूप में याद रख के जाना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनके छात्र। तो उन्होंने बोला कि ये जो पूरा वाला आइडिया है ना, ये मनमोहन सिंह जी को लिख के दिया, और उन्होंने लिख के दिया, उस समय के प्रधानमंत्री को लिख के दिया, उन्होंने सारे सजेशन, उनका 5-6 सजेशन दिए थे। और फिर उसके बाद जब मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम करने चला गया था 2009 में पास होने के बाद, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा आइडिया तो अच्छा था, बट अब क्या करोगे? सर आप मौका दीजिए तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने कहा 2 महीने की इंटर्नशिप किया, फिर 2 महीने की इंटर्नशिप जो शुरू हुई तो 27 जुलाई 2015 तक, और शायद आज तक नहीं हुआ, आज ही मेरे काम। तो जिंदगी में आपके लिए ऐसे बहुत अवसर आएंगे, लेकिन आपको उन अवसरों को कन्वर्ट करना और कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और डॉक्टर कलाम कहते थे जैसे कि कोई भी अगर आपको ऐसे अवसर को वाकई कन्वर्ट करना है, तो एक फ्रेज डॉक्टर कलाम बोलते थे जो सक्सेसफुल लोगों का सबसे सक्सेसफुल मंत्र। यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग बैठे हैं, खासतौर से उनके लिए, और ऐसे यंग लोग भी जो विचारों से जाते हैं। कई लोग 25 साल में विचार उनके बूढ़े हो जाते हैं, और कई 75 साल के लोग के विचार एकदम यूथफुल होते हैं। तो ऐसे सब लोग जो यूथफुल विचारों
से भरे हुए हैं, उनके लिए डॉक्टर कलाम एक चीज बोलते हैं, स्मॉल एम इज अ क्राइम। स्मॉल एम इज अ आप लोग मेरे पीछे ठीक से बोलेंगे, डॉक्टर कलाम बोलते थे स्मॉल एम इज अ क्राइम। तो ये कहते थे कि एक छोटा स्वप्न रखना एक अपराध है। तो आप सब लोग अगर बड़े स्वप्न रखते हैं तो कोई आपको अवसर जानेंगे नहीं, आपको अवसर क्रिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं आप सब लोग कलाम बन हैं, वो ज्यादा जरूरी है। कलाम बनना जरूरी है, करेक्ट? ओके सर, 5 टैग्स आपकी प्रोफाइल में लिखे हुए हैं: लीडर, ऑथर, पब्लिक स्पीकर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्टिविस्ट। नहीं लिखा है, पता नहीं मैंने नहीं लिखा। तो उसको मैं हटा देता हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए। आप पूछो कोई बात नहीं, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? आई मीन ये 5 में से आपका लर्नर वो लिखा नहीं है। अच्छा, You have to be a good learner. To begin with, you have to be humble and you have to learn. डॉक्टर कलाम से अगर आप उनकी लाइफ से देखें तो मैं तो खैर अभी उनकी आधी उम्र में भी नहीं हूँ। जब मैं उनके साथ काम करना शुरू किया था तब मैं उनकी 1/3 उम्र का था। लेकिन उनसे देख करके एक चीज तो मैंने सीखी जो उसमें नहीं लिखी है आपने 5 पॉइंट। तो छठा पॉइंट ये है सीक्रेट, यू नो, सीक्रेट। 5 पॉइंट ये है और ये सीक्रेट है, ठीक है? सीक्रेट ये है कि आपको एक हम्बल लर्नर बनना होता है। सर बहुत सारे लगभग ऑलमोस्ट ऑल लिटरेचर से ही कनेक्टेड है एंड यू बिकम एन ऑथर। सो जो आप जर्नी करते थे, जो आप चीज़ें देखते थे, जो आप चीज़ें सीखते थे, उसको आपने पेपर पे डाला, सो इट रीचेस टू लॉट ऑफ पीपल। नाउ यू हैव लिस्ट ऑफ बुक्स। 3 चीज़ में, 1 we'll talk about which you co-authored with Kalam sir, and another writer, and कुछ चीज़ें आपने लिखी very much related to Kalam sir. A book जहाँ से पूरा भी was part of that 3 million का जो फिगर है, हाँ, उस चीज़ को लेके if you can share with people what is the vision of it, what is this project, उसके कुछ experiences आप शेयर कर सको। देखिए, जब 2009 में जब डॉक्टर कलाम के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत बड़े आइडिया, यू नो सर, गांव ऐसे बदल देते हैं, वैसे बदल देते हैं, ये लगा देते हैं, ये सोलर सिस्टम लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वी हैव अ ग्रेट प्लान। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप बोल तो सब कुछ रहे हो, आपने देखा क्या? Then he sent me on a mission which that time I hated, ठीक है? He said you go into the village। हाँ यार, गाँव में जाएंगे, और वो भी ऐसे गांव, यूपी के गांव भेजो तो हिंदी बोलूंगा मैं, अपनी भाषा। महाराष्ट्र के गांव में भेज दिया, और वो किस भाषा में बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से समझ में कर पा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि आप पहले गांव में रहना शुरू करें। तो फिर जब भी 2-2 हफ्ते के पीरियड पे आई यूज्ड टू गो एंड लिव इन अ विलेज। और वो चित्रकूट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आता। वो पास पर भी तमिल बोलते हैं गाँव में, और भी नहीं समझ में आता, इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो वेरी डिफिकल्ट। बट you see the diversity, you see the diversity of India. That's how I first booked. After I completed this tour for about 2 years, 2011 में दिसंबर में we wrote this book, Target 3 billion. और इसका एक जो टारगेट लोग पूछे थे 3 बिलियन को, तो हमारे पब्लिशर ने पूछा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 2050 तक 3 बिलियन हो जाएगी? तो नहीं, तो फिर हम लोगों ने समझाया कि क्या है। 3 बिलियन इज द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 3 अरब लोग दुनिया के गाँव में रहते हैं। बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे गाँव में, अलग अलग देशों में, अफ्रीका में, कुल मिलाकर के 3 अरब लोग रहते हैं। अमेरिका में भी गाँव में लोग रहते हैं। 3 अरब लोग युवा हैं, आप जैसे लोग अंडर 35 मान लीजिए, 3 अरब लोग जो एंटरप्राइज चलाएंगे, नए बिजनेसेस लगाएंगे, और 3 अरब लोग दुनिया में गरीबी रेखा के नीचे। 3 अरब, 7 अरब आबादी है, 7 बिलियन, और 3 बिलियन इज अ मैजिकल नंबर व्हिच काइंड ऑफ डिवाइड्स दिस वर्ल्ड ऑन 8। सर, एक्चुअली आपने हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, and people are really looking forward to ask you questions. Can we have the floor open for the questions? उससे पहले मैं एक चीज़ पूछ लूँ, which is important for me. मुझे 20 मिनट्स मिले हैं, मेरा घड़ियाल सामने है गुजराती में। सर, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच है,
It's not a tech. It's a thinking process. Absolutely. Entrepreneurship is also a source. Yeah. तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? See, social entrepreneurship में दो चीजें हैं, social और entrepreneurship। मेरे ख्याल में पहली बात तो डिफाइन करिए social entrepreneurship क्या है। social entrepreneurship का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आप एक NGO चलाना शुरू कर दीजिए जिसमें लोग चैरिटी का पैसा दें और आप उस चैरिटी के पैसे से कुछ काम करें। That is not just social entrepreneurship; it is a part of it. But social entrepreneurship can be profit-making businesses, which actually empower people in profitable manner. But फिर आपका जो पहला बेस है वो ये है कि आपको एक सस्टेनेबल और एक ह्यूमैनिटी या किसी जो भी आप कर रहे हैं कॉज उसके लिए आप काम कर रहे हैं। Financial sustainability is a good thing to have in social entrepreneurship, and we should have it. In fact, I would encourage younger people to look into social entrepreneurship ventures where they can actually make profits, and there is nothing wrong in money. Right? Especially after 1000-500 का नोट बैन होने के बाद there's nothing wrong. Right? But now, how do you become a social entrepreneurship? You need two things, and because the lady is standing there, I'll tell you two. Right? First is the first word, which is social, which requires you to be compassionate. सबसे पहले संवेदना डेवलप करें। रोज मैं कहता हूँ कि और नितिन वर्क्स विद मी हियर इज हियर। एक चीज हम लोग मिशन चलाते हैं, डॉक्टर कलाम सेंटर से हम एक मिशन स्प्रेड कर रहे हैं कि आप हफ्ते में 2 घंटे कलाम बनिए, रोज 15 मिनट, हफ्ते में 2 घंटे 2 घंटे आप कंपैशन लेकर के आइए, 2 घंटे आप किसी और के लिए जिए। व्हाट कैन आई गिव? डॉक्टर कलाम बोलते हैं व्हाट कैन आई गिव। 2 घंटे आप व्हाट कैन आई गिव करने की कोशिश करिए हर हफ्ते। बस 2 घंटे आप क्यूरियस हम्बल लर्नर बन जाइए, चाहे जिससे सीख सकते हैं बिना किसी एक के, बिना किसी प्राइड के, आप जिससे भी सीख सकते हैं कुछ सीखिए। 2 घंटे आप एक काम और करिए, मेक योर मदर स्माइल, मेक योर मदर स्माइल। हफ्ते में 2 घंटे करते हैं आप। पहला सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेप है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके सर वो सिर्फ खड़ी है, इट्स ओके। I mean वो दोनों आई नो लकड़ी लेके नहीं है वहाँ पे। She is very nice, smiling, absolutely. She's nice. So I'm just being compassionate to her because I know she's got a job, right? Thank you. So entrepreneurship is a way of life. Entrepreneurship is not reflected in just your balance sheets and your profit and loss accounts. Entrepreneurship is a way of living. Entrepreneurship is when you look at a problem which everyone sees and find something which nobody has seen before. It's about living frugally, you know, finding the best solution. It's something which I was telling you there. It's about looking at things as problems and not questions. And it's about thinking not in terms of answers, but in terms of solutions. हर चीज का solution ढूंढने की कोशिश करें. Be a part of the solution. That is entrepreneurship. Entrepreneurship finds solution in everything and not just answers. ठीक है? Okay? That's it. Yeah. Go to Floor is open. people question answers. Yeah. Anybody have any questions? Yes. Can anybody give him a mic? Okay. Mr. Varun, Mr. Kataria, you have already told that we may have conversation in English, Gujarati, Hindi, or English or Gujarati. Am I right, sir? Mr. Varun has just told social entrepreneurship is a part of our life. अंदर की हमारी खुशियों कैसे बाहर आ सकती है, कैसे हमें जीना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसी बढ़िया होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। सर सॉरी टू से हमारे अहमदाबाद या गुजरात में जितने वृद्धाश्रम है वहाँ जितने वृद्ध लोग रहते हैं वो उसके सबके बेटे में कोई भी रिक्शा वाला नहीं है, कोई लारी ठेला वाला नहीं है, कोई श्रमजीवी वाला नहीं है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग के पापा मम्मी ही उधर है। तो ऐसी ही कन्वर्सेशन यहाँ भी चलती है, प्रिंट मीडिया में भी चलती है, टीवी में भी चलती है। वो इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं? वृद्धाश्रम में जाओ, किसी का पूछो कि दादाजी आपका बेटा क्या करता है, तो मेरा बेटा तो बड़ा क्लार्क है, मेरा बेटा यूं है, मेरा बेटा सो। कोई वृद्ध ने अभी तक ऐसा नहीं बोला कि मेरा बेटा रिक्शा वाला है, मेरा बेटा खेत का मजदूर है। क्यों? थैंक यू। आपका सवाल एक सवाल ही नहीं, डर, और वो हम सबका डर है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये डर सिर्फ उन लोगों का है जो उस विद्यालय में रह रहे हैं।
ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, ये उनका भी नुकसान है जिनके घरों से वो छोड़ करके इस विद्यालय में गए, क्योंकि उन बच्चों ने अपने माँ बाप को ख्याल रखने का जो एक अवसर होता है, जो एक ब्लेसिंग होती है, वो खो दिया। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता कि अपने माँ बाप का सेवा कर सके। डॉक्टर कलाम ऐसा बोलते थे कि माँ बाप का सेवा करना मतलब ये बहुत बड़ा अवसर होता है। वो कहते थे, मैं किसी ने उनसे पूछा कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, मीडिया ने पूछा, अभी 2015 की बात है, आपका सबसे बड़ा रिग्रेट, आपको सबसे बड़ा सॉरी किस बात का है जिंदगी में, आपका रिग्रेट क्या है, किस चीज का आपको दुख होता है? अब किस चीज का दुख हो? ऐसे इंसान जिसने सफलता पे सफलता प्राप्त करी और जिस खुश रहा, खुश भी रहे, उसको क्या दुख था? उन्होंने बोला, मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी माँ 104 साल तक, 98 साल तक जी, मेरे पिताजी 104 साल तक जी गए, और जीवन के अंतिम काल में आंखों की रोशनी दोनों की कम होता है। इंसान की आंखों की रोशनी उम्र के साथ कम होती है। वो कहते थे कि रामेश्वरम में जो मेरे माँ और मेरे पिताजी थे, उनकी आंखों की रोशनी कम होती, लेकिन रामेश्वरम में बिजली पूरी नहीं आती, लाइट नहीं आती, मेरा बड़ा घर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सामान है, 50 लोग रहते थे। जब अंधेरा हो जाता था तो जब अगर लाइट चली जाए तो दिए या लैंप, उस समय तो इन्वर्टर कहाँ होते थे, उस समय दिए और लैंप की रोशनी से मेरे माँ बाप को ठोकर लग जाती थी। मैं कुछ नहीं करता, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन इसको मैंने पूरा किया अपने भाई से। मेरे भाई अब 100 साल अभी हुए, नवंबर में 100 साल के हुए, उस समय 99 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने भाई के लिए, लेकिन ये नहीं होने दिया, उनकी भी रोशनी कम हो गई, तो मैंने सोलर प्लांट लगवा दिया अपने घर के ऊपर, सोलर के पैनल लगवा दिए ताकि 24 घंटे बिजली आ सके और वो कभी ठोकर नहीं खाए। ऐसे लोग खुश होते हैं और ऐसे ही लोग सफल होते हैं। वो लोग जो अपने इतिहास, जो अपने व्यक्तिगत इतिहास की कदर नहीं करते, उनका कदर उनका भविष्य कदर नहीं करता। और दूसरी बात जो आपके क्वेश्चन में खुद ही एक तथ्य छिपा है, इज दैट धन दौलत से परिवार नहीं, धन दौलत से मकान बनते हैं, घर नहीं बनते। धन दौलत से आपको एम्प्लॉय मिल सकते हैं, परिवार नहीं मिल सकते। आपको शायद सेल्स टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं मिल सकता। ठीक है, सो अहमदाबाद में जितने ज्यादा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, कहीं नहीं चलते। ये अहमदाबाद के चलाता है, इनको भी चलाता है। Sir, there's a question from if anybody can pass the mic, we'll take one. That's it. It's a very small fact check. You said that average Indian calorie consumption is 4,000. Vis-a-vis about 4 lakh plus in USA. So 2 lakh plus. So I mean, what was the matrix that was used? I'm not sure, sir. But this is 4,000 was the Stone Age. Storage. अभी करीब I thought I'd not convey you well enough. हजारों साल, लाखों साल पहले, perhaps about 50,000 साल पहले, Stone Age time में it was 4,000 calories when humans had fire and humans had wheel and humans used to make tools. उस समय 4,000 कैलोरी लगती थी। 2,000 तो हमारे खाने में लग जाती है कैलोरी, उस समय थोड़ी ज़्यादा लगती होगी, हम दौड़ते भागते ज़्यादा थे, लेकिन 2,000 के करीब कैलोरी हमें खाने की चाहिए और 2,000 में एक्स्ट्रा चाहिए होती है। आज शायद हमें 1,500 खानी चाहिए क्योंकि हम लोग काम तो करते नहीं हैं, तो लेकिन हम जो एक्चुअल एक अमेरिकन कंज्यूम कर रहा है वो 2.25 लाख के करीब कैलोरीज as of today. अब this includes heating cost, cooling cost, locomotion, the cost of fuel in your car, the cost of medical expenses जो आपको उसके लिए चाहिए होते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं उसके लिए एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस हैं, ये पानी इसको निकालना, इसको डिस्टिल करना, इसकी बॉटल बनाना, ये सारे कॉस्ट हैं। If you put together तो 2.25 लाख कैलोरीज हम हर रोज कंज्यूम करते हैं। Thank Sir, you. thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Yeah, thank you. So it's an amazing honor for all of us because you are doing a lot of things on the ground level. And I always remember Kalam sir एक auth जहाँ पे भी वो लगभग जगह पे वो लोग auth लेते थे। जब हमारा convocation था तब सर ने auth दिलाई थी। So at least we can take a auth here that we all will give at least 2 hours and we'll be Kalam. Let's do a proper roll of applause.
ये तो 5.4. आपका बेटर यही सोचिए. डॉक्टर कलाम कहते थे कि आप मस्तिष्क से सावधान रहिए. बिल्कुल. खड़े मत होइए, कोई फर्क नहीं. ठीक है. लेकिन आप सावधान रहिए और आप याद रखिए. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट वो बोलते थे जो मैंने आपको बोला दिया है. आप मेरे पीछे बोलेंगे. इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल एम इज अ क्राइम. स्मॉल एम is a crime. Wherever I go, whatever I do, one thought shall come to my mind. That is, what can I give? What can I give? What can I give? Correct. और what can I give? What can I take? This is the problem. सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि हमें जो मिलता है, इंसान मिलता है तो इंसान से क्या ले लें? तुम्हें 500,000 करोड़ दे दो, ठीक है? पेड़ मिलता है तो पेड़ काट के लकड़ी ले लो, तो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. करेक्ट. From today onwards, I will make sure that I give one smile to my mother. Correct. Every day. नहीं करोगे तो mother will catch you. This is recorded. Okay. Yeah. अच्छा. 4. 2 more. 2. I will work with integrity and succeed with integrity. Last one. My national flag flies high in my heart. And I will bring glory to my nation. Thank you so much, Mr. Srijan Pal Singh and Justice Kataria. Honored to have you with us. Can you have the mementos to our guests, please?